Hello, good morning, student. So, today we are going to see the chapter 7 of Ashoka, the emperor who gave up a war. So, let's start this chapter with an intro, or you can say Roshan's rupees. What is this? Let's see here. Roshan clutched the crisp notes and that her grandfather had given her on her birthday. While she badly wanted to buy a new CD, she also wanted to just see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a tiny set of lions on the left. What were the lions there for? She wondered. A very big kingdom, an empire. The lions that we see on our notes and the coins have a long history. They were carved in the stone and placed on the top of a massive stone pillar at the Sarnath, about which you read in chapter 6. Ashoka was one of the greatest rulers known to history, and on his inscriptions were inscribed on pillars as well as on the rock surfaces. Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire. The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of Chanakya's ideas were written down in a book called the अर्थशास्त्र. अब देखिए यहाँ पे जो है आप बेसिकली इस चैप्टर में अशोका और उनका जो एम्परर था और किस तरह से उन्होंने हार के बारे में मतलब उनकी हार जो थी किस तरह से उन्होंने गिव अप किया, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है आप यहाँ पे देखेंगे और जानेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे जो बताया गया है, जो आप अशोका चक्र देखते हैं जो अभी हमारे कॉइन्स में या फिर और सारी चीज़ों में देखने को मिलता है, ये बेसिकली क्या है, ये अशोका जो थे हमारे जो बेसिकली जो वो किंग थे उनके राज्य में अशोका चक्र जो है वो बनाया गया था और यही अशोका चक्र आपको सारनाथ में देखने को मिलेगा. और हमारी जो न्याय व्यवस्था है या हमारे जो कॉइन्स हैं या जो रुपीज़ हैं, आपको ये जो 3 शेर दिखते हैं ये उसमें ही दिखेंगे. सो दिस इज़ व्हाट दैट एंड और अगर आपको अशोका के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस है या जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिस तरह की लाइफ उन्होंने लिव की, ये सारी चीज़ें जो है आपको अशोका के पिलर्स मतलब जहाँ पे इनका राज्यपाठ था वहाँ पे जो पिलर्स है या जो भी स्टोन्स है उस पर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं. और जो अशोका थे उनके जो पिता थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और ये जो हिस्ट्री है करीबन 2300 ईयर्स अगो की है. एंड चंद्रगुप्ता जो थे उनके जो वाइज मैन थे जो उन्हें सबसे ज़्यादा एडवाइस करते थे या चीज़ों के बारे में बताते थे किस तरह की पॉलिटिक्स करनी है, किस तरह का डिसीजन लेना है किस सिचुएशन में. तो वो थे कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम चाणक्य भी था. और इन्होंने इनके ही कई सारे आइडियाज़ थे जिसके बेसिस पे एक बुक बनी है जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं. चलिए हम देखते हैं आगे. There were several cities in the empire marked with, first of all, just see this dynasty. When members of the same family become rural one after the another, the family often called the dynasty. The Mauryas were the dynasty with the 3 important rulers. First was Chandragupta Maurya, then his son is Bindusar, and then Bindusar's son was Ashoka. That means Chandragupta Maurya जो थे वो कौन थे? अशोका के ग्रैंडफादर थे. तो बेसिकली दिस इज़ हियर. सो जस्ट रिमेंबर दैट थिंग कि चंद्रगुप्त के जो पुत्र थे वो कौन थे? बिंदुसार, और उनके पुत्र थे अशोका. सो प्लीज़ rectify the information what I have said earlier and that what I am saying now. So let's see the next page here. There were several cities in the empire marked with the black dots on the map. अब देखिए ये जो सिटीज़ को मार्क किया गया है, ये सिटीज़ जो है उन्होंने जीत ली थी. बेसिकली ये इनकी क्या थी? एम्पायर्स थी. दिस इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्रा, तक्षशिला एंड उज्जैन. तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to South India. Merchants, officials, and craftspersons probably lived in these cities. In the other areas, there were villages of farmers and the herders. In some areas, such as central India, there were a forest where people gathered forest produce and hunted animals for food. People in the different parts of the empire spoke different. अब देखिए ये जो है कई सारी जो जगह है उनके बारे में बताई गई है जो उनके मेन कैपिटल थे लाइक पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन. और इसका जो मेन गेटवे था तक्षशिला का वो नॉर्थ वेस्ट गेटवे था.
इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। और इसके साथ साथ इनके कई सारे मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन थे जो सिटी में ही बेसिकली रहते थे। और इसके साथ साथ कई सारे फार्मर्स, हर्डर्स थे जो सेंट्रल इंडिया में रहते थे। और काफ़ी सारे फॉरेस्ट में जो थे वो लोग रहते थे, जहाँ वो इकट्ठा होते थे। वहाँ पे फूड्स पीपल जो फूड्स के लिए, या फिर हम शिकार की बात करें तो उन सारी चीज़ों के लिए बेसिकली वहाँ लोग रहा करते थे। और जो पीपल्स थे वहाँ पे, मतलब बेसिकली जो लोग थे वो कई तरह की लैंग्वेज भी यूज़ करते थे बात करने के लिए। They probably ate different kinds of food and wore a different kinds of clothes as well. और उनका जो पहनावा ओढ़ावा था वो भी काफ़ी हद तक अलग अलग था। Now here we see the ruling empire. As the empire was so large, different parts were ruled differently. The area around Patliputra was under the direct control of the emperor. This meant that the officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, crafters, persons, and the traders who lived in the villages and the towns in the area. Officials also punished Officials also punished those who disobeyed the ruler's order. Many of these officials were given salaries. Messengers went to and fro, and spies kept a watch on the officials, and of course, the emperor supervised them all. With the help of members of the royal family and the senior ministers, there were other areas of province. Each of these was ruled from a provincial capital, such as Takshila or Ujjain. Although there was some amount of control from Patliputra, and the royal princes were often sent to the governors, local customs and the rules were probably followed. Besides, there were vast areas between these centers. Here, the Mauryas tried to control roads and the rivers, which are important for transport, and to collect whatever resources were available as tax and tribute. For example, the Arthashastra tells us that the northwest was important for blankets and South India for its gold and the precious stones. It is possible that these resources were collected as tribute. अब देखिए यहाँ पे जो है एम्पायर के बारे में बताया गया, तो एम्पायर किस तरह से चलता था या किस तरह की चीज़ें थी। अब जो है एम्पायर था उनका जितना भी, जहाँ जहाँ भी, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट रूलर थे जो उस चीज़ को बेसिकली रूल करते थे। बट जो मेन पाटलिपुत्र था ये एम्परर से, यानी जो भी एम्परर थे वहाँ के, जैसे मान लीजिए अशोका थे, मानने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, वो वहाँ पे जो एम्परर थे वो कौन थे, अशोका थे उस वक्त पे। तो बेसिकली ये जो एरिया था वो पूरी तरह से इनके कंट्रोल में था। और इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे क्या होता था, जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो इनके ही ऑफिसर्स होते थे। तो ये जो भी टैक्स कलेक्ट करते थे तो ये किनसे करते थे, फार्मर्स से, हर्डर्स से, या जो भी क्राफ्ट पर्सन होते थे या ट्रेडर्स होते थे, इनसे लेते थे। और जो भी टैक्स कलेक्ट करते थे उनके ऊपर भी कुछ स्पाइस को जो है रखा जाता था, ताकि जो है एम्परर को पता चल सके कि ये जो अपना काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं, कोई भी धोखाधड़ी जो है काम में नहीं की जा रही। तो ये सारी चीज़ें सुपरवाइज की जाती थी। और इसके साथ साथ जो अदर एरियाज़ था उसमें भी कई सारे जो है वो प्रोविंशियल कैपिटल, जैसे तक्षशिला या उज्जैन है, तो इन सारी जगहों पे बेसिकली क्या होता था, अपने हिसाब से जो रूल करते थे उनके ऊपर भी जो है एम्परर रूल करते थे, क्योंकि वो हर चीज़ का ध्यान रखते थे, सुपरवाइज करते थे कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सही हो रही हैं या नहीं हो रही है। इसके साथ साथ जो भी मौर्यास थे वो हमेशा जो भी कंट्रोल है वो रोड्स और रिवर्स पे रखते थे। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में जो भी आ रहा है जा रहा है उनको भी कलेक्ट करना। इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें जो है वहाँ पे देखी गई हैं, तो वो उनसे ये पता चलता है कि उन्हें वो सारी चीज़ें ट्रिब्यूट में मिली थी या दी गई थी। अब चलिए हम देखते हैं आगे। ट्रिब्यूट क्या है? अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज वैन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव अ वेराइटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। अब कई सारी चीज़ें जो ट्रिब्यूट में दी जाती थी या तो देना चाहते हैं या बहुत उत्साह थे या कम उत्साह से, पर अपार्ट फ्रॉम टैक्स जो चीज़ें दी जाती थी वो ट्रिब्यूट कहलाती थी। There were also the forest region. People living in this area were more or less independent, but may have been expected to provide elephant, timber, honey, wax to the Mauryans official. अब देखिए कई सारे लोग जो थे वहाँ पे फॉरेस्ट रीजन में रहते थे, और वो पूरी तरह से आधी तरह से ही वो इंडिपेंडेंट थे। पूरी तरह से उन पे ऐसा नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट है। और जो भी है ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती थी उनसे कि जो भी फॉरेस्ट में रह रहे हैं वो एलिफेंट या फिर टिम्बर, यानी जो कि लकड़ियाँ हैं या शहद है या वैक्स है, ये सारी चीज़ें मौर्यन ऑफिशियल्स को ये चीज़ें ला के दी जाएँ। अशोका अ यूनिक रूलर। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। जो मौर्य में जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे रूलर, उनमें से जो थे वो अशोका थे।
He was the first ruler who tried to take his message to the people through an inscription. Most of the Ashoka's inscription were in a Prakrit and were written in the Brahmi script. अब देखिए जो भी बेसिकली किसी ने अगर मैसेज दिया है तो उन्होंने अशोका जी ने दिया है, और उनके जो मैसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस में है, और जिन्हें कि प्रकृत और जो कि प्रकृत है, और इसके साथ साथ जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोका's वॉर इन कलिंगा, जो कलिंगा का युद्ध था वो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कलिंगा इज़ द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। जो कलिंगा है वो उड़ीसा का ही काफ़ी पुराना नाम है। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा, अशोका जी ने जो वॉर फाइट की थी वो उड़ीसा को जीतने के लिए की थी। हाउ एवर ही वॉज अ हॉरिफाइड वैन द सॉ द वॉयलेंस एंड ब्लड शेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। और जो भी वहाँ पे वायलेंस क्रिएट हुआ था, जो उन्होंने देखा था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वो हॉरिफाइड हो गए थे उतने ब्लड शेड और वायलेंस को देखने के बाद, और उन्होंने डिसाइड किया कि इसके बाद अब वो कोई भी और वॉर नहीं करेंगे। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप द कॉन्केस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। और वो पूरी हिस्ट्री में एक अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने वॉर को जीतने के बाद उसके बाद मतलब दोबारा कभी उन्होंने युद्ध नहीं किया। What was Ashokadhama? Ashokadhama did not involve worship of a god. So Ashokadhama did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. He felt that just as father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teaching of the Buddha. और उनका जो कहना था कि वो किसी भी तरह के भगवान की पूजा में या सैक्रिफाइस में बिलीव नहीं करते थे। उनका कहना था जो भी उन्होंने सीखा है उन्होंने अपने पिता से सीखा, और वो चीज़ वो अपने बच्चों को देंगे और इस तरह से वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। उन्हें बेसिकली अपने सब्जेक्ट्स को इंस्ट्रक्शन देना होता है, और ये कई सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बुद्धा से सीखी थी। देयर वॉज अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, और इसके अलावा कई सारी प्रॉब्लम्स थी जो उन्हें बहुत परेशान करती थी। पीपल इन द एम्पायर फॉलोड अ डिफरेंट रिलीजन एंड दिस समटाइम्स लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट। Animals were sacrificed, slaves and servants were ill-treated. Besides, there were a quarrel in the families, and amongst the neighbors, Ashoka felt it was his duty to solve these problems. So he appointed officials known as the Dhamma Mahatma, who went from place to place teaching people about Dhamma. Besides, Ashoka got his message inscribed on the rocks and pillars, instructing his official to read the message to those who could not read themselves. Ashoka also sent the messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece, and the Sri Lanka. He built roads, dug wells, and built rest houses. Besides, he arranged for the medical treatment for both human beings and animals. अब देखिए अशोका जो थे, अशोमा धामा जो थे, ये सारी चीज़ों से मतलब इंस्पायर थे। वो सारी चीज़ों में बिलीव करते थे कि वो पूजा और ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, या किसी तरह का सेक्रीफाइस नहीं करना है, किसी जानवर की बलि नहीं देनी है। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो थी, इसके साथ साथ वो कई सारी प्रॉब्लम जैसे कि हम जानते हैं फेस कर रहे थे। तो वो ये चाहते थे कि जिस तरह से एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता है वो ना किया जाए। जितने भी स्लेव्स या सर्वेंट है जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, इस तरह से उनको ट्रीट ना किया जा सके। जिन फैमिली में या नेबर्स में जिनमें लड़ाई झगड़ा है, उस सारी चीज़ों को बंद की जाए, क्योंकि ये समझते थे उनकी ड्यूटी है उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने की। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था जिन्हें धामा महात्मा कहा जाता था। ये जो थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते थे और उनको लोगों को समझाते थे, बताते थे जो बेसिकली अशोका का मैसेज था जो उन्होंने अपने पिलर्स या रॉक्स पे लिखवाया था, उन सारी मैसेजेस को एक से जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे। बेसिकली ये चीज़ें लोगों में स्प्रेड करते थे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, या क्या चीज़ें सही हैं। अब सपोज देख लें यहाँ पे जो है अशोका का मैसेज जो है टू हिज सब्जेक्ट्स यहाँ पे बताया गया है कुछ चीज़ें। पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल और व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड। तो आप इस मैसेज को एक बार पढ़ लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए
मैं एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा पढ़ के बता दे रही हूँ ताकि थोड़ा ईजी जाए आपके लिए। पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरी, व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी। अब देखिए अशोका जी का मैसेज क्या था कि कभी भी कोई अगर बीमार पड़ रहा है, किसी की शादी हो रही है या कोई यहाँ से कहीं और ट्रैवल कर रहा है, तो कई कई तरह के जो है वो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये सारे रिचुअल जो है वो यूज़फुल नहीं है। अगर इसकी जगह पीपल ये प्रैक्टिस करना शुरू करें कि सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल क्या है और अदर प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, तो उन चीज़ों को बेसिकली किया जाए। दीज आर बींग जेंटल विद द स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर। और ये काफ़ी अच्छा होगा कि अगर हम जो भी हमारे स्लेव्स हैं, जो भी सर्वेंट्स हैं, हम उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव करें और जो हमारे बड़े हैं उनसे भी हम अच्छी तरह से बात करें। Treating all creatures with a compassion, giving gifts to Brahmins and monks. It is both wrong to praise one's own religion or to criticize another's. Each one should respect the other religion. If one praises one's own religion while criticizing the another, one is actually doing a greater harm to one's own religion. Therefore, one should try to understand the main idea of another religion and respect it. तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बताई और कही हैं। देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज है, यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस बताई गई हैं, जैसे अर्ली ब्राह्मी लिपि क्या थी, देवनागरी यानी हिंदी है, बंगाली है, मलयालम है, तमिल है। ये सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं। बिलो द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द over hundreds of years. Here you can see the letter A written in different scripts. अब जो letter A है यानी हिंदी का अ है, वो देखिए कितनी अलग अलग लैंग्वेजों में कैसे कैसे लिखा गया है। अब ये देखिए बताया गया है, somewhat before the time of Mauryan Empire, about 2400 years ago, emperor in China began building the Great Wall. उसी समय जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बन रही थी। तो किस तरह से बन रही थी इसका एक दृश्य दिखाया गया है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। एंड जब भी मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी, इसके साथ साथ इसके आंसर भी अपलोड करूँगी। और आप मेक श्योर कर आप अपनी कॉपियाँ कंप्लीट कर लें। And I hope everything you have understood. And if you have any difficulty or any doubt, so please let me inform or ask me the question so I can answer you. Thank you for the day.